हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, मटेरियल्स, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। You all are familiar with different types of materials like stone, sand, plastic, copper, aluminium, glass, cement and so on. We use different materials for different purposes. The use depends on the properties of the material. Let's take an example of cooking. For cooking purpose, we use utensils made up of steel, iron, aluminium, पीतल। इन बर्तनों का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट पास हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। बट उसी कुकिंग यूटेंसिल को पकड़ने के लिए, जस्ट टू होल्ड, वी हैव अ हैंडल मेड अप ऑफ either wood or plastic or rubber, because these things are bad conductors of electricity. So lesson start करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे कि what is this matter? द्रव्य क्या है? Matter is anything that occupies a space and has mass. वो कोई भी पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है और जिसको रखने के लिए स्थान की जरूरत होती है, जो स्थान घेरती है, उसे द्रव्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंटर है, इसको रखने के लिए हमें स्पेस की जरूरत होगी, इसका कुछ मास है, वी फील इट, सो दैट इज कॉल्ड मैटर। दिस मैटर is made up of elements. Elements क्या है? Elements are the simpler substances which cannot be broken down by chemical processes. And these elements are made up of still smaller units called atoms. So these atoms are the building blocks of everything in this universe, including ourselves. ये जो atoms हैं, these atoms have the properties of these elements. तो द्रव्य तत्वों से मिलकर बना है। तत्व वो सरलतम पदार्थ है जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, और ये तत्व छोटे इकाइयों से मिलकर बने हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। सो ये परमाणु सभी वस्तुओं के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। थोड़ा सा एटम के बारे में जाने। ये जो एटम है, वेरी स्मॉल, बट दे आर फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? ईच एटम हैज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर, एंड दिस न्यूक्लियस has two types of particles, protons and neutrons. Protons are positively charged and neutrons have no charge. And third particles are also there. These are electrons, which are negatively charged, and these electrons revolve around this nucleus in different orbits. So atom is made up of these three particles: protons, neutrons and electrons. No two elements have same number of protons. So atom के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है। सभी तत्वों में पर प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, और यही प्रोटॉन तत्व की, एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करती है। हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है। सो यू शुड नो सम ऑफ द एलिमेंट्स एंड यू मस्ट बी नोइंग सम ऑफ द एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के नाम है कार्बन, नाइट्रोजन,
oxygen, aluminium, copper, chlorine, hydrogen, and magnesium. So are all these elements similar? Let's see. I have three things. I have coal, iron nail, and aluminium rod. Let's see their appearance. These two are shiny, but this coal has a dull appearance. So these things which are visible or which we can measure directly, such properties are known as physical properties, like its color, its texture, its odor, so on. So let's study some of the physical properties of these elements, and जब हमें ये properties पढ़ लेंगे, उनकी जानकारी हो जाएगी, तब हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। आयरन एंड दिस एल्यूमिनियम को अगर हम किसी चीज से स्ट्रक करते हैं, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड sonorous. They have a shiny appearance, and this shiny appearance is known as luster. इस रॉड को बनाया गया एल्युमिनियम के कंटेनर भी होते हैं, दैट मीन्स एल्युमिनियम के मैं वायर्स भी देखती हूँ, एल्युमिनियम की मैं शीट्स भी देखती हूँ, एल्युमिनियम का फॉइल भी देखते हैं। इट मीन्स मटेरियल्स लाइक एल्युमिनियम can be changed into sheets on hammering or on rolling. This ability of a substance by which it can be converted into sheets on hammering or rolling is known as malleability. Some materials can be drawn into wires, and this property by virtue of which a substance can be drawn into wires is known as ductility. And we know that for cooking purpose we use steel, aluminium. क्यों? क्योंकि they are good conductors of heat. We use copper wire because copper is a good conductor of electricity. But if I hammer this coal, what will happen? No sonorous sound, no ringing sound. It has a dull appearance. On hammering, it is not converted into sheet, rather it changes into powder, and it cannot be drawn into wires. So, all those elements which are hard, have luster, are sonorous, are good conductors of heat and electricity, show malleability and ductility, are called metals. ऐसे सभी पदार्थ या वो सभी तत्व जो कठोर हैं, चमकदार हैं, ध्वनिक हैं, मतलब जब उन्हें किसी चीज से स्ट्रक किया जाता है तो वो एक घंटी जैसी आवाज पैदा करते हैं, इसलिए हम उन्हें ध्वनिक कहते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं, आघातवर्ध हैं, मतलब जिन्हें हथौड़े से पीटने पर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्य हैं, जिन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है, वो सब कहलाते हैं धातु। और जिन पदार्थों के बारे में हम कह सकते हैं जो कठोर नहीं है, चमकदार नहीं है, ध्वनिक नहीं है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, आघातवर्ध नहीं है, तन्य नहीं है, वो सभी अधातु कहलाते हैं। All those materials which are not hard, are not lustrous, not sonorous,
Bad conductors of heat and electricity, not malleable, not ductile, are called non-metals. ये जो बातें हमने कही, these are called physical properties. So these are the physical properties of matters and physical properties of non-metals में सभी में not आ जाएगा. That means of all the 118 elements known, these elements can be divided into 3 categories, not 2. Metals, non-metals and metalloids. Metalloids are those elements जिनमें कुछ properties metals की होती हैं and कुछ properties non-metals की होती हैं. Metalloids के लिए आप नाम याद रख सकते हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का. And for metals, you should remember aluminum, copper, sodium, gold, silver, iron, and so on. And for non-metals, अधातु है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन मैलिएबिलिटी, डिफाइन डक्टिलिटी. आघात वर्धनीयता क्या है या तन्यता क्या है, तो आपको इसका डेफिनेशन भी आना चाहिए. बिसाइड्स दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर जनरल. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. वो एक्सेप्शंस क्या हैं? हमने पढ़ा मेटल्स हार्ड होती हैं, बट मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है और उसका इस्तेमाल हम थर्मोमीटर में करते हैं. हमने कहा मेटल्स आर हार्ड, कठोर होती हैं मेटल्स, बट देयर आर सर्टेन मेटल्स which can be cut with a knife. They are so soft. और ऐसे सॉफ्ट मेटल्स कौन सी हैं? सोडियम एंड पोटेशियम. ये सॉफ्ट मेटल्स मुलायम धातुओं के उदाहरण है सोडियम और पोटेशियम. नॉन मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा, दे आर जनरली नॉट हार्ड, बट डायमंड इज द नॉन मेटल विच इज वेरी हार्ड. इन फैक्ट diamond is the hardest substance on this earth. हमने बोला कि non-metals do not show luster, but exceptions are there. Iodine and graphite, they have luster. You know what is graphite? जो पेंसिल के बीच में होता है, that is also graphite. Non-metals are generally bad conductors of heat and electricity, but carbon gas and graphite are the exceptions which are good conductors of heat and electricity. मतलब अधातुओं में कार्बन गैस और ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हैं, जबकि बाकी सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं. अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसी अधातु हैं जिनमें चमक होती है. धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो मुलायम है. अधातुएं सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कठोर नहीं होती हैं जनरली. लेकिन डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है, सबसे कठोर पदार्थ है इस अर्थ पर. सो दिस वाज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.